Hello everyone, welcome back in Python's class. I am Ashish Goel and today we are going to learn about libraries in Python, right? Introduction. So far we had read many books, right? All these books have a common theme. You know what? Any idea, any guesses? Okay. That is, these books are divided into units or chapters, right? Now, the question is why? Putting all the pages of one book together will make a book difficult to comprehend. So, similarly, in Python programming, we create a smaller handleable unit. These are called modules, and collection of modules are known as libraries. So, a library refers to a collection of modules that together cater to specific type of needs or application. A library can have multiple modules in it. The Python we can work with in Python we can work with many predefined libraries as well as we can define our own libraries too. Okay, so we have both the options कि हम predefined libraries के साथ काम कर सकते हैं Python में या फिर अपनी खुद की libraries भी बना सकते हैं. In Python we have following type of libraries: predefined libraries and user defined libraries. Commonly used some predefined libraries are Python standard library, ठीक है, जिसे मैथ मॉड्यूल आपको इसमें मिलता है, which provides the mathematical functions to support different type of calculations. CMath module, a random module like static module, or say URL lib module. ठीक है, URL library basically ये है URL lib module. Okay, so we had different type of predefined libraries here in Python itself, right? तो ये जो standard libraries है इन्हें use करके हम बहुत सारे काम easily कर सकते हैं. Okay, next is NumPy library. NumPy library is a special library जो कि आप अलग से ऐड कर सकते हो और वो जो NumPy library है वो आपको help करती है to work with numeric arrays. Okay, to collection of the numbers basically you can say. Science SCI Pi for scientific calculations we have this tool. ठीक है, केंटर लाइब्रेरी जो कि आपको जीयूआई इंटरफेस यूजर फ्रेंडली जीयूआई इंटरफेस डिजाइन करने में हेल्प करेगा. एंड द ओके मेलप्लॉट लिब लाइब्रेरी आपको हेल्प करेगी फॉर प्लॉटिंग द चार्ट्स एंड ग्राफ्स एक्सेट्रा, राइट. तो आप इस तरीके से बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं. दीज आर सम एग्जांपल ऑफ द लाइब्रेरीज अवेलेबल इन द available for Python or available with the Python. Okay, the act of partitioning a program into individual component is known as module is called modularity. ठीक है, तो जो एक्ट है पार्टीशनिंग करने के लिए प्रोग्राम को वो कंपोनेंट्स में उसे हम कहते हैं मॉड्यूलैरिटी. और मॉड्यूल्स जो मिलकर मतलब जो कंपोनेंट्स हैं जिनको हम डिवाइड कर रहे हैं, जो डिवाइड करके कंपोनेंट बनेगा वो कहलाएगा मॉड्यूल. A Python module is a file that is a py file जो अभी तक हम बनाते आ रहे हैं, that is also a py file. तो एक py file ही है Python module containing variables, classes, statements and functions related to a particular task. Module is a separate unit in itself. Module अपने आप में complete और separate unit है. By applying partitioning in programs, we can reduce their complexity to some degree and it creates a number of well-defined documented boundaries within the program, right? तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे पार्टीशनिंग से. जब हम पार्टीशनिंग करते हैं तो जो हमारा कोड है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा और जब कोड छोटा होगा तो डेफिनेटली उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाएगी.
तो एक बार में हमें कोड छोटा दिखाई दे रहा है, एक एक पर्टिकुलर मॉड्यूल हमें छोटा दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली उसकी जो डिग्री है वो कम होगी एंड इट क्रिएट्स अ नंबर ऑफ वेल डिफाइंड डॉक्यूमेंटेड बाउंड्रीज। तो डेफिनेटली वो कुछ बाउंड्रीज भी डिफाइन करेगा, एक वेल डिफाइंड छोटी छोटी बाउंड्रीज हमने क्रिएट कर दी हैं, बेसिकली हम यह कह सकते हैं। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम मॉड्यूल बना रहे हैं या पार्टीशनिंग कर रहे हैं, तो एक मॉड्यूल में हमने एक पर्टिकुलर बाउंड्री में एक पर्टिकुलर टाइप के सारे काम को रखा हुआ है, तो इजीली हम वहाँ पे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं या ढूंढ सकते हैं कौन सा प्रोसेस कहाँ मिलेगा या कौन सा काम कहाँ पे करना है एक्सेट्रा, राइट। तो काफ़ी बेनिफिट्स हम मिल जाते हैं अगर हम फाइल्स को सेपरेट कर देते हैं, इनकी मॉड्यूल्स बना कर रख लेते हैं इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल द थिंग इन अ सिंगल प्रोग्राम। ठीक है, वी डिवाइडेड इनटू मॉड्यूल्स, राइट। So that would be much better and much helpful. All right. Okay. Another useful feature of having module is that it contents can be reused. Okay, so we can reuse the content of the module, right? तो मॉड्यूल के जो कंटेंट है वो ऐसा नहीं है कि आपने पर्टिकुलर एक एक प्रोसेस के लिए एक प्रोजेक्ट के लिए बनाए हैं तो आप केवल उसी में यूज करेंगे। यू कैन यूज इट फॉर मैनी, लाइक आगे के लिए भी आप उसे यूज कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि आगे भी अगर मुझे वही सेम काम करने की जरूरत है तो वो सेम मॉड्यूल हम यूज अगेन किसी और प्रोजेक्ट में भी कर सकते हैं, या सेम प्रोजेक्ट में भी उसको कितने बार भी यूज कर सकते हैं। तो रीयूजेबिलिटी भी आपको मॉड्यूल्स प्रोवाइड करते हैं। Structure of Python module. A Python module can contain much more than just functions, right? तो ऐसा नहीं है कि Python module आप बना रहे हैं तो उसमें आप केवल functions रखने वाले हैं। तो that may contain more than that, ठीक है। तो functions हैं, functions के अलावा statements हैं, constant values वहाँ पर हो सकती हैं, classes हो सकती हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपके एक function एक Python module में हो सकते हैं। A Python module is a normal file, that is a Py file containing one or more of the following objects related to the particular task. Docstring, triple quoted comments useful for documentation, variables and constants, labels for data। ठीक है, जो variables and constant हम लेके यहाँ पे चलने वाले हैं। Classes, templates, blueprint to create objects instantiates of classes। ठीक है, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट भी हमारे पास से सपोज हो सकते हैं। तो वेरिएबल्स हो सकते हैं, कांस्टेंट हो सकते हैं, क्लासेस हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी हम वहाँ पे रख सकते हैं, और इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स भी यहाँ पर हो सकते हैं। स्टेटमेंट्स instruct to the Python to do something, right? Functions, yes, named group of instructions जो कि हम कह ही रहे हैं शुरू से कि functions हो सकते हैं। तो अगर मेनली हम यहाँ पे बात करें और मॉड्यूल की जिसे हम किसी और प्रोग्राम या फिर कहीं और प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं, तो उसमें नॉर्मली आपको मिलेंगे क्लासेस, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट एंड फंक्शंस। ठीक है, ये तीन सबसे मेजर एलिमेंट्स हैं जो कि हर मॉड्यूल में आपको देखने को मिलेंगे। या सपोज एक चीज और, डॉक स्ट्रिंग भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डॉक स्ट्रिंग की हेल्प से हम ये बताते हैं कि कोई पर्टिकुलर मॉड्यूल में क्या रखा है, क्यों रखा है, वो कैसे काम कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। A module in general is independent grouping of code and data variables, definitions, statements, and functions. Can be reused in other programs and can depends on other modules as well, right? तो ये एक जनरल मॉड्यूल के बारे में है कि मॉड्यूल क्या हो सकता है। Okay, let's check out the example. Okay, so here we have created an example. तो एग्जाम्पल में हमने जो फाइल बनाई है उसका नाम हमने रखा है टैंक कन्वर्जन। हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो मॉड्यूल बने, इस मॉड्यूल में हमारे पास दो फंक्शन हो जो कि सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करे गिवन फ़ारेनहाइट वैल्यू को, और दूसरा जो है फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करे गिवन सेंटीग्रेड वैल्यू को। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो फाइल बनाई है उसको हमने यहाँ कमेंट के साथ लिख दिया है कि दिस इज अ फाइल नेम, दिस इज एक्चुअली अ मॉड्यूल नेम, and this is used to conversion um,
ठीक है, दिस प्रोवाइड्स द कन्वर्जन फंक्शन बिटवीन फ़ारेनहाइट टू एंड सेंटीग्रेड, राइट। तो ये फंक्शंस यहाँ पर आ गए। फंक्शंस क्या क्या है हमारे पास, टू सेंटीग्रेड एंड टू फ़ारेनहाइट। सेंटीग्रेड वाले फंक्शन में हमने सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट, सॉरी फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है, और जो वैल्यू हमारे पास आ रही है एक्स में, उससे हमने ऑब्टेन किया है सेंटीग्रेड को, राइट। एक यहाँ पे भी डॉट स्ट्रिंग दी है, रिटर्न्स एक्स कन्वर्टेड टू सेंटीग्रेड, ठीक है। इसी तरीके से टू फ़ारेनहाइट यहाँ पे भी हमने मैसेज दिया है, ठीक है, डॉक स्ट्रिंग जो कि बता रहा है रिटर्न्स एक्स कन्वर्टेड टू फ़ारेनहाइट, राइट। उसके बाद हमने कांस्टेंट रखे हुए हैं, फ्रीजिंग सेंटीग्रेड डिग्री 0.0 और फ्रीजिंग फ़ारेनहाइट 32, ठीक है। तो वाटर फ्रीजिंग टेम्परेचर एंड वाटर फ्रीजिंग टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, राइट। तो ये हमने यहाँ पे सिंपली एक मॉड्यूल बनाया हुआ है, एंड दैट मॉड्यूल इज नॉट गोइंग टू एग्जीक्यूट बेसिकली। तो आपको ये मॉड्यूल एग्जीक्यूट नहीं करना है, बल्कि इस मॉड्यूल को एग्जीक्यूट करने के लिए, इस मॉड्यूल को यूज करने के लिए हम अलग से फाइल्स बनाएंगे। तो पहले हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास में सारे कमेंट्स हैं, इन कमेंट्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो लेट्स चेक दिस आउट। इसलिए हमने यहाँ पर एक सिंपल सी फाइल बनाई है, से लाइक दिस, जिसमें हमने टाइम कन्वर्जन को यूज करना है। तो हमने इंपोर्ट कराया है टाइम कन्वर्जन, ठीक है। एंड देन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं हेल्प टाइम कन्वर्जन। देखिए किस तरीके से डॉक स्ट्रिंग और बाकी सारी चीजें हमारी काम करती हैं, क्योंकि हेल्प की वजह से हमें दिखाई देंगी। तो हेल्प फंक्शन बेसिकली मॉड्यूल का डिटेल हमें निकाल कर देगा कि व्हाट इज दैट मॉड्यूल, व्हाट इज इट फॉर, ठीक है। तो हेल्प ऑन मॉड्यूल टाइम कन्वर्जन, ये देखिए आउटपुट आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। नेम, ठीक है, टाइम कन्वर्जन, ठीक है, नेम है, ठीक है, जो कि क्या करेगा, कन्वर्जन फंक्शंस बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड ये हमें प्रोवाइड कर रहा है। फंक्शंस क्या क्या है, फंक्शन है हमारे पास टू सेंटीग्रेड, रिटर्न्स एक्स कन्वर्टेड टू सेंटीग्रेड, एंड दूसरा फंक्शन है हमारे पास यहाँ पे टू फ़ारेनहाइट, ठीक है, जो कि रिटर्न कर रहा है एक्स कन्वर्टेड टू फ़ारेनहाइट, राइट। इसके अलावा डेटा मेंबर्स हैं दो यहाँ पर, ठीक, और फाइल कहाँ पर है, फाइल मौजूद, ये भी यहाँ पर दी हुई है। तो इस तरीके से ये आपको यहाँ पे टोटल शो कर देगा, डिटेल शो कर देगा हेल्प की मदद से, कि आपके पास में जो कंटेंट है मॉड्यूल में वो क्या है और कैसे आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास में एक और कमांड भी होती है dir। तो dir कमांड से भी आप यहाँ पे काम ले सकते हो। dir will going to list you all the available functions, variables, classes, whatever element we have in the module, so that is going to be listed using the list। तो ये फ्रीजिंग सी, फ्रीजिंग ऐप, ये सारे यहाँ पर दिख रहे हैं, टू फ़ारेनहाइट ये सब, ठीक है। इसके अलावा देखिए कुछ और चीज़ें भी हैं जो कि ऑटोमेटिक आपका सिस्टम ऐड करता है खुद से, जैसे कैश, डॉक, ये जितने भी डबल अंडरस्कोर वाले जो आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे सिस्टम एडेड एलिमेंट्स हैं, राइट, जो कि सिस्टम यूज करता है, ठीक है। इसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते हो, लाइक प्रिंट हेल्प, suppose we want help for a specific कन्वर्जन, और यहाँ पर आपने दे दिया एक फंक्शन जैसे डॉट टू current। Okay, suppose you want to get the help of a specific function or specific element of the module, that also possible, ठीक है। तो देखिए हेल्प ऑन द फंक्शन टू फ़ारेनहाइट इन मॉड्यूल टाइम कन्वर्जन टू फ़ारेनहाइट एक्स, ठीक है, रिटर्न्स एक्स कन्वर्टेड टू फ़ारेनहाइट, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे हेल्प या dir कमांड्स को यूज कर सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं कि आपके मॉड्यूल में क्या है और वो कैसे काम कर रहा है, जो भी डॉक स्ट्रिंग की हेल्प से होगा। अगर डॉक स्ट्रिंग नहीं है, प्रॉपरली आपने कमेंटिंग नहीं की हुई है, प्रॉपर आपने सारी चीजें नहीं रखी हुई हैं, तो फिर आपको हेल्प या dir से फायदा नहीं होगा। dir से आपको नेम मिल जाएंगे, बट हेल्प जो आपको यहाँ पे
सारा डिटेल दिखा रहा था कि रिटर्न करेगा या फिर ये फंक्शंस अवेलेबल हैं, वो सब इसलिए क्योंकि हमने डॉक स्ट्रिंग्स वगैरह दी हुई है। अगर हम डॉक स्ट्रिंग्स नहीं देंगे तो काम नहीं चलेगा। ओके, लेट्स चेक अब इसे यूज कैसे करना है। सपोज चाहते हैं कि हम इसे यूज करें यहाँ पर, तो देखिए किस तरीके से करेंगे। हमने क्या किया, हमने इंपोर्ट कराया है यहाँ पे टेम्प कन्वर्जन को, और अब हम चाहते हैं कि जो इंपोर्ट करके हमारे पास आया है, ठीक है, उसे हम यूज करें। तो हमने एक वैल्यू एंटर कराई, ठीक है, एंटर द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट टू कन्वर्ट इट इनटू सेंटीग्रेड। मैसेज लिखकर हमने एक फ्लोट वैल्यू एंटर करा ली है FRN में। और अब हम क्या कर रहे हैं, टेम्प कन्वर्जन डॉट सेंटीग्रेड टू सेंटीग्रेड FRN पास कर रहे हैं, जिससे कि हमें सेंटीग्रेड मिले और फिर हम उसे डिस्प्ले कराएंगे। ओके, चेक इट आउट, रन कर रहे हैं। ओके, तो एंटर फ़ारेनहाइट वैल्यू हमने कहा 32, एंड ये प्रोसेस हुआ, इसने मेथड कॉल किया, ठीक है, इस मॉड्यूल का। अभी यहाँ पर आप देखिए आउटपुट आ चुका है, एंटर फ़ारेनहाइट इज कन्वर्टेड टू सेंटीग्रेड। ठीक है, तो जो फ़ारेनहाइट एंटर हुआ था वो सेंटीग्रेड में कन्वर्ट हो चुका है, देख सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है, इसी तरीके से हमने यूज करना है दूसरा मेथड। तो यहाँ पर हमने कॉल कराया हुआ है कन्वर्जन डॉट टू फ़ारेनहाइट, क्योंकि हम यहाँ सेंटीग्रेड इनपुट करा रहे हैं और फ़ारेनहाइट में से कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो CNT में हमारे पास होगा सेंटीग्रेड, एंड यहाँ पे CNT को हमने पास कर दिया टू फ़ारेनहाइट मेथड में, जो कि हमें फ़ारेनहाइट निकाल के देगा, और फिर हम यहाँ फ़ारेनहाइट को डिस्प्ले कर रहे हैं प्रिंट के रूप से। ऑलराइट, लेट्स रन दिस अगेन। अभी हमने सेंटीग्रेड वैल्यू देनी है, तो 0.0 हम दे सकते हैं, गेट 32। तो 32 फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट में, और जो सेंटीग्रेड है उसमें फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है 0, यानी कि दोनों वैल्यूज बराबर है, तो 0 का 32 और 32 का 0। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पर एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, वी हैव अनदर ऑप्शन ऑफ इंपोर्टिंग functions or elements from the module, and that is from import। तो from import कैसे काम करता है, from आपने कहा temp conversion, तो आपने temp conversion से import कराना है, and you can specify a specific object only, right। तो आपने यहाँ पे specific object दिया to centigrade, ठीक है, तो यहाँ पे centigrade मेथड जो है वो आपका इंपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक और बेनिफिट और एक और डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, जब आप सिंपल इंपोर्ट करते हैं किसी मॉड्यूल को, तो आपको जब फंक्शन यूज करना है तो मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम आप यूज करते हो, लेकिन जब आप फ्रॉम इंपोर्ट करते हो तो आप सीधा वो फंक्शन जो आपने इंपोर्ट किया है यूज कर सकते हो। ओके, तो आउटपुट में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ करने का तरीका बदला है। हम देख सकते हैं आउटपुट से -40 एक टेम्परेचर होता है जो कि दोनों में इक्वल होता है। चेक कर लिया हमने, -40 दिया फ़ारेनहाइट में, सेंटीग्रेड में कन्वर्ट होकर -40 ही आ गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे टू फ़ारेनहाइट यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टू फ़ारेनहाइट हमने इंपोर्ट करा लिया, और फिर अब हम इसे यूज कर सकते हैं। बट what when we need to use both, तो अगर हमें ये दोनों यूज करने हैं तो ये दोनों भी यूज किए जा सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट्स को भी इंपोर्ट कर सकते हो, लाइक कॉमा लगाया हमने और दूसरा यहाँ पे लिख दिया।
तो इस तरीके से कॉमा लगा के जितने भी आपको चाहिए वो सारे आप इंपोर्ट कर सकते हैं। जो भी आप इंपोर्ट करेंगे केवल उसको ही यूज कर पाएंगे। तो अभी अगर आप चाहें कि जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो आप यहाँ पे यूज कर लें तो दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो इस तरीके से आपको जितने भी n नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द मॉड्यूल कैन बी imported like this by separated comma, ठीक है। बट यस एक चीज और हम यहाँ पे कर सकते हैं, इफ यू वांट देन यू कैन पुट अ स्टार हियर, ठीक है। दैट मींस यू वांट टू इंपोर्ट एवरीथिंग फ्रॉम द टाइम कन्वर्जन, तो यस ये भी एक ऑप्शन आपके पास में हो सकता है। इसके हेल्प से आप यहाँ पर कोई भी जो भी functions, classes, constant, whatever we are having in the module can be used in your program if we import uh, from import star, ठीक है। तो अगर हमें सारी चीजें इंपोर्ट करनी है, सारे एलिमेंट्स इंपोर्ट करने हैं तो हम यूज कर सकते हैं फ्रॉम import star, राइट। So in Python, we want to use the definition inside the module. Then we need to first import the module in our program, as we already seen. Python provides the import statement in to import modules in a program. ठीक है, तो import statement से हम module को import कर सकते हैं, जिसे हम देख भी चुके हैं। And the import statement can be used in two forms: import entire module, like import module, and to import selected objects uh, from the module. Okay. Processing of import module command. Take when you use import module command, internally following things take place. The code of imported module is interpreted and executed. Defined functions and the variables created in the module are now available to the program that imported module. For imported module, a new namespace is set up within with the same name as that of the module. And what happens when we use from import? From import के केस में क्या होगा? From import के केस में the code is imported module is interpreted and executed. ये तो सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो जिस मॉड्यूल को आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो मॉड्यूल इंटरप्रेट होगा और एग्जीक्यूट होगा। ओनली द asked functions and variables from the module are made available to the program, लेकिन केवल वही मॉड्यूल जिसको आपने बोला है यूज करने के लिए, सिर्फ वही मॉड्यूल आपके यहाँ पर अवेलेबल कराए जाएंगे, ठीक है। नो न्यू नेम स्पेस क्रिएटेड, द imported definition is just added in the current namespace, ठीक है। तो कोई नया नेम स्पेस यहाँ पर नहीं बनेगा, सिर्फ जो imported definition है जिसको हमने इंपोर्ट किया है वो ऐड हो जाएगी हमारे करंट नेम स्पेस में। ओके, थैंक यू। We will meet in next session with some next new topic. Okay, bye bye.